Hi guys and welcome to the official YouTube channel of Nyaya Academy. Companies Act की series में today I will tell you about not 2, not 3, not 5, rather 14 different types of companies. So if you're thinking about like public company, private company, government company, or maybe foreign company. So if your count of companies is limited to 4 or 5, then you should definitely watch this video. Because after watching this video, your knowledge will be significantly enhanced and you will see that what you were missing, what you did not know. So let's find out about all those 14 different kind of companies that you did not know about. So ये आपके सामने मैंने पूरा यहाँ पे चार्ट बना रखा है and this chart is just one slide. There is another slide which completes the chart. So I have listed down like 6 and 7 different type of companies here. So types of companies may, if we start with, there is public company, then there is private company, then there is limited company, unlimited company, government company, foreign company, then there is निधि company. So if you are thinking कि ये तो मुझे पता था already, wait for it. Other different types of companies are holding, subsidiary, investment companies, finance companies, producer company, one person company, and statutory corporations. So these are all the 14 types of companies that we are going to discuss today. So let's start with public company. So सबसे देखिए इसमें से बहुत बार कंपनी लॉ का देखिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सेबी लीगल और आईबीपीएस एसओ लीगल ऑफिसर का जो एग्जाम होता है, सो उसमें आपको कंपनी लॉ मैंडेटरी है एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ ह्यूज चंक ऑफ द सिलेबस. सो 10% क्वेश्चंस जो है कंपनी लॉ में से आते हैं. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर वेरियस लीगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो क्वेश्चंस कई बार बहुत ही सिंपल बेसिक होते हैं कि जैसे वो आपसे पूछ लेगा कि पब्लिक कंपनी कौन से सेक्शन में डिफाइंड है. सो सेक्शन 271 जो है, सेक्शन 271 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 says public company means a company which is not a private company. So it has defined it like in a very simple manner. So any company which is not a private company is a public company, but it should have a minimum paid up capital of 5 lakh rupees. तो 5 lakh rupees का ये minimum paid up capital उसका होना चाहिए for it to be called a public company. And it also includes a private company which is a subsidiary of a company which is not a private company. So public company की कोई subsidiary अगर वो private company भी है, it will be called as public company. अदर रिक्वायरमेंट्स क्या है पब्लिक कंपनी के लिए? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 होना चाहिए. सो मिनिमम 7 मेंबर्स मिलके पब्लिक कंपनी को बना पाएंगे. इट मस्ट बी रजिस्टर्ड, रजिस्ट्रेशन जो है कंपलसरी है. शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी मस्ट बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज. तो स्टॉक एक्सचेंज पर उसके शेयर्स और डिबेंचर्स जो है वो लिस्टेड होने चाहिए. एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की इसमें कोई लिमिट नहीं है. सो देयर इज नो लिमिट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी. एंड देन देयर इज फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स बाय द पब्लिक. सो जो भी पब्लिक, जनरल पब्लिक एक पब्लिक कंपनी के शेयर्स को खरीदती है, दे कैन इजीली फ्रीली ट्रांसफर दोस शेयर्स टू एनी अदर पर्सन. सो फॉर एग्जांपल Indian Oil Corporation Limited, IOCL, is a public company. Next, we will understand what is a private company. So जैसे सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 के अंदर पब्लिक कंपनी को डिफाइन किया गया है, सेक्शन 268 डिफाइन करता है प्राइवेट कंपनी. सो देखिए पब्लिक कंपनी के केस में हमने देखा था कि मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है वो 5 लाख का होना चाहिए. बट प्राइवेट कंपनी के केस में पहले ये रिक्वायरमेंट थी कि मिनिमम 1 लाख पेड अप कैपिटल होना चाहिए. बट 2015 के अमेंडमेंट के बाद ये रिक्वायरमेंट खत्म कर दी गई है एंड नाउ a private company can have any amount of minimum paid up capital. So this is something which has been recently changed and you must know. And it restricts the right to transfer its shares. देखिए प्राइवेट कंपनी के केस में यू कैन नॉट इजीली ट्रांसफर योर शेयर्स टू एनीबॉडी. सो देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स. एंड एक्सेप्ट इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी इट रिस्ट्रिक्ट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200. सो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम लिमिट हमें देखने को मिल रही है. पब्लिक कंपनी के केस में देयर वाज नो मैक्सिमम लिमिट टू द नंबर ऑफ मेंबर्स. इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट देयर कैन बी इज 200.
It prohibits any invitation to the public to subscribe for any securities of the company. So ये point का मतलब क्या है? It means ये public issue नहीं कर सकते shares का. So let's find out what other privileges are given to private companies. क्या advantages हैं? देखिए, सबसे पहला है कि 2 ही members चाहिए. So only 2 members are sufficient to constitute a private company. कोई minimum subscription का amount is not needed. So जैसे public company को अगर public issue करना है तो minimum 90% shares जो है उसके subscribe होने चाहिए by the public. So there is no need, there is no requirement of minimum subscription for allotment of shares in case of a private company. And they don't have to file a prospectus or statement in lieu of prospectus with the registrar or to the public. So prospectus का जो requirement है, filing of prospectus is not a mandatory requirement for private company. और क्या इसके privileges and advantages हैं? देखिए, private company may appoint 2 or more directors by a single resolution. तो एक single resolution pass करके प्राइवेट कंपनी 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है. नेक्स्ट 5th पॉइंट में है कि डायरेक्टर्स कैन फ्रीली वोट ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स इन विच दे हैव इंटरेस्ट. यानी जहां पे डायरेक्टर्स का वेस्टेड इंटरेस्ट भी है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, दे कैन फ्रीली वोट ऑन दोज मैटर्स. उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में उनको कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, दे आर नॉट प्रोहिबिटेड टू वोट, दे आर अलाउड टू वोट इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी. और इनको अपना P&L अकाउंट जो है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, रजिस्ट्रार के साथ जो फाइल करते हैं ये लोग, पब्लिक को अलाउड नहीं है कि वो इनके P&L अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सके. सो देयर financial position or their financial statements, they are not open to inspection by non-members or by the public. So, and next is that private companies are free to issue any kind of shares, be it equity, be it preference. So they are free to issue any kind of shares. There is no restriction on remuneration payable to directors. So directors को जो remuneration उन्हें pay करना है, there is no limit to that. They can pay any amount of remuneration they feel free. Lastly, audit committee need not be constituted. देखिए, audit committee is a committee which is constituted by, like, it is mandatory for all the public companies that they have to constitute an audit committee which will audit the books of accounts, the financial statements of the company. So in case of a private company, they don't need to constitute an audit committee. चलिए, we have seen what is a public company, we have understood what is a private company. So what are the basic differences? फटाफट से देख लेते हैं. सबसे पहला minimum members की अगर हम बात करें तो 7 in case of a public company and 2 in case of a प्राइवेट कंपनी. तो मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए एंड 2 मेंबर्स चाहिए प्राइवेट कंपनी के केस में. मैक्सिमम पब्लिक कंपनी के केस में नो लिमिट एंड प्राइवेट कंपनी के केस में, प्राइवेट कंपनी के केस में 200 मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं. अगर बात करें रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की, so public company are free to transfer their shares. Members of a public company or shareholders of a public company, they can easily transfer their shares, but not so in case of a private company. There are certain restrictions in case of a private company. Minimum number of directors, at least 3 directors are mandatory in case of a public company, or private company के case में minimum 2 directors are needed. Certificate of commencement of business. See, whenever a public company or any company gets itself registered, the registrar issues a certificate of commencement of business, and a company cannot start its business or operations until it has got or received the certificate of commencement of business. So a public company cannot start its business without this certificate, but a private company can do so as soon as it is incorporated. So private company need not have a certificate of commencement of business to start its operations. Lastly, स्टैट्यूटरी मीटिंग की अगर बात करें, स्टैट्यूटरी मीटिंग इज अ मीटिंग व्हिच इज mandated by law that any company which is newly incorporated must conduct a statutory meeting. So public company के केस में the public company has to hold this meeting within not less than a month and not more than 6 months from the date of its entitled to commence business. So जब से उसको business शुरू किया है, so 1 से 6 महीने का जो टाइम है वो दिया गया है पब्लिक कंपनी को, उसके अंदर पब्लिक कंपनी को अपनी स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड करनी है. ऐसी कोई रिक्वायरमेंट प्राइवेट कंपनी के केस में नहीं है. सो दीज वर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन अ पब्लिक कंपनी एंड अ प्राइवेट कंपनी. नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारी है कंपनी की वो है लिमिटेड कंपनी. सो लिमिटेड कंपनी में भी देखिए 2 कैटेगरी है. पहली है लिमिटेड बाय शेयर्स एंड द सेकंड वन इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का है सेक्शन 2 सबसेक्शन 21. ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं. यस, सो
कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स देखते हैं क्या होता है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के केस में जो लायबिलिटी है मेंबर्स की इन द इवेंट ऑफ कंपनीज बीइंग वाउंड अप क्या होता है देखिए, when a company ceases its business, when it ceases to run its business, then it is said that company has wound up or company is winding up its business. So the ending of company's business can be termed as winding up. ठीक है, so in the event of companies winding up, the liability of the members is limited to the extent of the unpaid value of shares. अब इसका मतलब क्या हुआ देखिए, so suppose कोई भी कंपनी है एंड उसका शेयर का वैल्यू है 100 रुपीज, लेकिन सपोज आई एम अ मेंबर एंड मैंने जब इस कंपनी का ये शेयर खरीदा तो मैंने 50 रुपीज जो है वो पहले ही पे कर दिए थे. नाउ 50 इज द अनपेड अमाउंट जो मेरा बैलेंस बचा हुआ है. दिस इज द सॉरी, आई एम सो सॉरी, यू कैन नॉट सी हियर. सी 100 इज द अमाउंट जो एक शेयर का है जो किसी कंपनी का मैंने खरीदा है. आई एम अ मेंबर ऑफ दैट कंपनी, आई एम शेयर होल्डर, और इसमें से मैंने 50 जो है वो पे कर दिया है. 50 जो है वो अनपेड है. So this is the unpaid value of share which is left. So जब भी कंपनी वाइंड अप होएगी, मेरी जो लायबिलिटी है जितना मुझे पे करना है, इट इज लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट. यानी जितना मेरा शेयर का अनपेड अमाउंट है सिर्फ उतना ही मुझे पे करने को कहा जा सकता है. दिस इज द केस इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. तो मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ द अनपेड बैलेंस. जितना उन्होंने पे नहीं किया है उतने तक ही उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, उससे ज्यादा पे करने को उन्हें नहीं कहा जा सकता. नेक्स्ट इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. देखिए सबसे पहले लिमिटेड बाय शेयर्स है और ये वाली जो है लिमिटेड बाय गारंटी है. तो गारंटी का यहाँ पे क्या मतलब है देखिए, जब कंपनी के मेंबर्स मिलकर कंपनी बनाते हैं सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम. सो मेमोरेंडम जो है वो मेंबर्स अपना मिलकर बनाते हैं और मेमोरेंडम के अंदर वो एक अमाउंट स्पेसिफाई कर देते हैं कि जब भी कंपनी वाउंड अप होगी तो मेंबर्स की कोई भी मेंबर अपना जो है वो एक गारंटी अमाउंट दे देता है कि कंपनी अगर वाइंड अप होगी तो मैं 1 लाख रुपए, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मैं 1 लाख रुपए की गारंटी लेता हूँ और इतना अमाउंट लायबिलिटी का मैं पे करूंगा. ठीक है, सो एसेट्स, कंपनी की एसेट्स में इतना अमाउंट मैं कंट्रीब्यूट करूंगा. सो ये होता है इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. ठीक है, बट अगर उन्होंने शेयर्स भी लिए एंड देयर इज सर्टेन अमाउंट व्हिच इज अनपेड इन केस ऑफ शेयर्स, वो भी उनको पे करना पड़ेगा. सो द गारंटी जो है वो इस अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर से अलग है. दे कैन बी आस्क्ड टू पे जितना उन्होंने गारंटी लिया है कि मैं इतना पे करूंगा, एंड इफ एनी अनपेड बैलेंस इज पेंडिंग in respect of their shares. So this is company limited by shares and company limited by guarantee. I hope you have understood this. It's very simple and basic. चलिए, so इनके डिस्टिंक्टिव फीचर्स देखते हैं. जो हमने कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी पढ़ा है, देखिए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जो है वो किसी भी टाइप की हो सकती है. वो उसकी शेयर कैपिटल हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती. सो इट कैन हैव अ शेयर कैपिटल, इट मे नॉट हैव अ शेयर कैपिटल. एंड द अदर थिंग इज दैट अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मे बी अ पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी. सो पब्लिक या प्राइवेट कोई भी टाइप की कंपनी हो सकती है विच इज लिमिटेड बाय गारंटी. थर्ड कैटेगरी जो हमारा है कंपनी का वो है अनलिमिटेड कंपनी. सो दिस इज द थर्ड कैटेगरी दैट वी आर स्टडीइंग, अनलिमिटेड कंपनी. सेक्शन 292 जो है कंपनीज एक्ट का वो बात करता है अनलिमिटेड कंपनी के बारे में. सो सेक्शन 292 says a company not having any limit on the liability. So not having any limit, जिसकी लायबिलिटी पे कोई लिमिट नहीं है. यानी अगर हम मैक्सिमम लायबिलिटी की बात करें कि अगर कंपनी वाउंड अप होती है तो मेंबर्स को कितना अमाउंट पे करने को कहा जा सकता है, यानी उनकी पर्सनल एसेट्स को भी बेचा जा सकता है लायबिलिटी को, या जो कंपनी के डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस है, जो कर्जे हैं, उनको पे करने के लिए. So unlimited company, as the name suggests, the liability of the members is unlimited. So even their personal assets can be utilized or realized to meet the debt and obligations of the company. So जो अच्छा एक चीज और जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है देखने वाली कि जो लाइबिलिटी है मेंबर्स की is only towards the company. Liability is only towards the company and not towards the company's creditor. देखिए उनको कंपनी को पे करना है अमाउंट, नॉट टू द कंपनीज क्रेडिटर्स. जो उनकी लायबिलिटी है, जो पर्सनल एसेट्स वगैरह बेच के पे ऑफ की जाएगी, दे आर लायबल टू द कंपनी, नॉट टू द कंपनीज डायरेक्टर्स डायरेक्टली. हेंस इसीलिए कंपनी के वाइंड अप के टाइम जो लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है टू रियलाइज द एसेट्स ऑफ द कंपनी, सो ओनली लिक्विडेटर कैन आस्क द मेंबर्स टू कंट्रीब्यूट देयर पर्सनल एसेट्स, ताकि कंपनी के डेट्स को, कंपनी के कर्जों को डिस्चार्ज
किया जा सके। एंड सेक्शन 4 ऑफ द Companies Act 2013 provides that an unlimited company must state in its memorandum. So उसका जो memorandum of association होता है, MOA जिसे कहते हैं, उसके अंदर कंपनी को स्पेसिफाई करना है, स्पेशली मेंशन करना है कि उसके मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ कैटेगरी है, गवर्नमेंट कंपनी। So this is the fourth category that we are studying, government company. Section 245 जो है Companies Act 2013 का, it defines government company and it is very simple to understand what is a government company. So any company in which not less than 51% of the paid up share capital, so paid up share capital की हम बात करें यहाँ पे, not less than 51% of the paid up share capital is held by central government or any state government or center or state government both, or partly by central government, partly by state government, or partly by one or more state governments, and it includes a company which is a subsidiary of a government company. So देखिए गवर्नमेंट कंपनी की ओनरशिप की अगर हम बात करें तो देखिए मेन फीचर हमें यही है गवर्नमेंट कंपनी का, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ गवर्नमेंट कंपनी वी मस्ट नो कि ओनरशिप किसकी है। सो नॉट लेस देन 51%, सो मिनिमम 51% जो है वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ रहा, या किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास आ रहा, या थोड़ा सेंट्रल के पास, थोड़ा स्टेट के पास, या दो से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स मिलके भी होल्ड कर सकती हैं, तो इधर इंडिविजुअली और जॉइंटली। सो इन सारे केसेस में उन कंपनी को कहा जाएगा कि वो गवर्नमेंट कंपनी है। ऑल्सो दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट कि एक गवर्नमेंट कंपनी की जो सब्सिडरी है वो भी गवर्नमेंट कंपनी ही मानी जाएगी। एंड गवर्नमेंट कंपनीज आर व्हाट वी यूजुअली रेफर एज PSU। सो जो हम जिनको PSUs कहते हैं वो जनरली गवर्नमेंट कंपनीज होती है। सो नेक्स्ट हम अगर बात करें गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में, जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल होता है जिसको हम कैग कहते हैं, विच इज लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। सो कैग अपॉइंट करता है गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर को। So an auditor of a government company is appointed by CAG. Do remember this is a very important point, and question can be asked in the form of MCQ from this point. Now, next, a government company cannot contribute any amount directly to or indirectly to any political party. Again, this is very important thing that you must know कि किसी भी political party को कोई भी political contribution या any sort of amount to any political party, a government company cannot provide any amount to any political party, जैसे बाकी companies को allowed है देना. So remember this, a government company is not allowed to contribute any amount directly or indirectly to any political party. Next, फिफ्थ कैटेगरी जो हमारा है वो है फॉरेन कंपनी का। देखिए जो टर्म है फॉरेन कंपनी वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 42 जो है कंपनीज एक्ट का उसमें डिफाइंड है। वैसे नाम से हमें इट इज प्रीटी क्लियर कि फॉरेन कंपनी मतलब ऐसी कंपनी होगी जो बाहर की है, बाहर की इन द सेंस की फॉरेन कंट्री की, अब्रॉड की है। सो इट इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। यस, सो फॉरेन कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बट it must have a place of business in India, whether by itself or through an agent. So या तो खुद उन्होंने बिजनेस यहाँ पे शुरू किया या किसी एजेंट के थ्रू, और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिक मोड। सो बिजनेस या तो वो फिजिकली शुरू कर सकते हैं या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड शुरू कर सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू बी कंसिडर्ड अ फॉरेन कंपनी, द कंपनी हैज टू फुलफिल बोथ दीज क्राइटेरिया। तो दोनों क्राइटेरिया पूरा करना है कि उसका प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए इंडिया में या खुद से या किसी एजेंट के थ्रू, एंड बिजनेस जो कंडक्ट कर रहे हैं वो या तो फिजिकली या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। चलिए इलेक्ट्रॉनिक मोड से क्या मीनिंग है हमारा ये देख लेते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या क्या आ जाएगा। सो एनी बिजनेस और कोई भी कंज्यूमर ट्रांजैक्शन जो वो कर रहे हैं या डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं या कोई भी डिजिटल सप्लाई ट्रांजैक्शंस हैं, so it includes all online services, communication services या email से कोई business अगर वो conduct कर रहे हैं, mobile devices, cloud computing, social media, data transmission, all these are included in electronic mode. So all these activities if conducted through electronic mode by any company, any business incorporated outside India, but the business is conducted in India, it will be termed as a foreign company. Next देखिए जो हमारा न्यू एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013, उसके हिसाब से जो कंपनीज
So those companies who are involved in transactions pertaining to consultancy services. So consultancy services अगर कोई दे रहा है, financial services, e-commerce, but having customer base in India. So any foreign company which is providing consultancy services, financial services, e-commerce to the customers in India, so they are required to establish a permanent place of work in India. So उनको एक यहाँ पे office या business खोलना पड़ेगा in order to operate in India. So currently there are a number of foreign based websites that are operating directly or indirectly in India, and they are having a place of business in India through electronic mode. For example, जो online travel companies हैं, they are in joint venture with several airlines and they're selling tickets of those airlines on their online portal, and ऑनलाइन कोचिंग जो प्रोवाइड करते हैं इंडियन स्टूडेंट्स को. सो ऑल दीज आर इंक्लूडेड अंडर फॉरेन कंपनीज. एग्जांपल के तौर पे वी हैव IBM. So it is a foreign company which has a place of business in India, and it is providing like technological and consultancy services in India. नेक्स्ट जो हमारा कैटेगरी है वो है निधि कंपनी का. सो आई थिंक दिस इज सेवेंथ जो हमारा कैटेगरी है वो है निधि कंपनी का. निधि शब्द का जो मतलब है in Hindi, it means treasure. So Nidhi means treasure in Hindi. देखिए, निधि कंपनी एक ऐसी कंपनी है which has been incorporated as a Nidhi with the object of cultivating the habit of thrift and saving amongst its members. यानी निधि कंपनी बनाई जाती है ताकि उसके मेंबर्स के अंदर सेविंग की हैबिट को इनकलकेट किया जा सके. तो मेंबर्स में सेविंग को प्रमोट करने के लिए निधि कंपनी बनाई जाती है. सो काम क्या होता है निधि कंपनी का? बेसिकली इट रिसीव्स डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. सो इट रिसीव्स डिपॉजिट्स एंड सेविंग्स को प्रमोट करता है, एंड ये जो डिपॉजिट्स अपने मेंबर्स से लेते हैं बाद में ये लेंडिंग भी मेंबर्स को ही प्रोवाइड करते हैं. सो लेंडिंग टू इट्स मेंबर्स फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट. एंड जो सेक्शन 406 है हमारा कंपनीज एक्ट का, इट डिफाइंस निधि कंपनी. सो अब देखिए फटाफट से रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं निधि कंपनी की क्या है. A निधि कंपनी टू बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट शैल बी अ पब्लिक कंपनी. सो अगर निधि कंपनी को इस एक्ट के तहत रजिस्टर होना, इनकॉर्पोरेट होना है तो उसको पब्लिक कंपनी के तौर पर रजिस्टर होना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेट होना पड़ेगा. एंड जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल की यहाँ पे हम बात करें मिनिमम, वो कितनी होनी चाहिए? 5 lakhs की. राइट. सो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं इशू कर सकती है निधि कंपनी. ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत मैटर करता है कंपनी को निधि कंपनी कहने में. सो निधि कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसका ऑब्जेक्ट होता है अपने मेंबर्स के अंदर सेविंग्स की हैबिट को प्रमोट करना और मेंबर्स से डिपॉजिट्स रिसीव करना और लेंडिंग उन्हीं मेंबर्स को देना व्हेन नीडेड फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स. एंड लास्टली अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, निधि कंपनी अपने नाम के पीछे निधि लिमिटेड उनको लगाना पड़ेगा एज अ पार्ट ऑफ इट्स नेम. जैसे पब्लिक कंपनी के केस में देखो वो लिमिटेड लगाते हैं, प्राइवेट कंपनी के केस में वो प्राइवेट लिमिटेड पी ऐसे ब्रैकेट में एंड लिमिटेड लिखा होता है. ठीक है, अगर सिंपल लिमिटेड लिखा है तो इट मींस इट इज अ पब्लिक कंपनी, बट अगर पी लिमिटेड लिखा है इट मींस इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. ऐसे ही निधि कंपनी को अपने नाम के आगे निधि लिमिटेड लिखना पड़ेगा. चलिए और देख लेते हैं फटाफट से निधि कंपनी के बारे में थोड़ा सा. देखिए इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर की अगर हम बात करें, इट रेफर्स टू निधि. इस सेक्टर के अंदर अगर हम निधि कंपनी को देखें तो कोई भी ऐसी म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी जो सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन निकाल के जिसको निधि कंपनी के तौर पर दर्जा दिया है, वो कंपनी भी निधि कंपनी कहलाएगी. सो द कंपनी इज डूइंग निधि बिजनेस. जैसे निधि बिजनेस मतलब कि वो बोरिंग लेते हैं मेंबर से और अपने ही मेंबर्स को लेंड करते हैं फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट, एंड these companies work under different names. So इनके अलग अलग नाम से ये ऑपरेट करती हैं, जैसे निधि या परमानेंट फंड या बेनिफिट फंड्स या म्यूचुअल बेनिफिट फंड्स या म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी, एंड दे आर मोर पॉपुलर इन साउथ इंडिया. सो ये निधि कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है ये साउथ इंडिया में ज्यादा पॉपुलर है, वहां पे ज्यादा देखने को मिलता है. Now, talking about the main source of funding, इनको फंड्स कहाँ से आते हैं? So principal source of fund क्या है? जो मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी मेंबर्स जितना कंट्रीब्यूशन देते हैं, जो डिपॉजिट्स वो कंपनी को देते हैं, इट इज अ मेन सोर्स ऑफ फंड फॉर दीज कंपनीज. और लोन्स जो दिए जाते हैं निधि कंपनी के मेंबर्स को, वो जनरली रीजनेबल रेट्स पे, फेयर रेट्स पे, यानी मार्केट से कम रेट पर दिए जाते हैं, एंड फॉर द पर्पसेस सच एज हाउस कंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स, और यही सब पर्पसेस होते हैं मेंबर्स के बेनिफिट के लिए. चलिए नेक्स्ट 8th कैटेगरी जो हमारा है वो है होल्डिंग कंपनी का.
So this is the 8th category of company that we are studying. Section 246 जो है Companies Act 2013 का, it defines holding company, and the company is said to be holding company if it holds or owns at least 50% of the other company. So अगर for example A is one company and B is another company, ठीक है. सो अगर ए कंपनी का बी कंपनी के अंदर 50% से ज्यादा की ओनरशिप है या स्टेक है, सो वी विल से दैट ए इज द होल्डिंग कंपनी एंड बी इज द सब्सिडरी कंपनी, राइट. सो जो ए है वो होल्डिंग कंपनी है क्योंकि उसकी 50% से ज्यादा ओनरशिप है, मिनिमम 50% तो होना ही चाहिए, एंड a holding company has the authority to make management decision. So B के मैनेजमेंट के जो डिसीजंस हैं, B को कैसे मैनेज किया जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सारा कंट्रोल जो है वो A के हाथ में यानी होल्डिंग कंपनी के हाथ में होता है. And section 287 defines subsidiary company. Subsidiary company is a company that is controlled by the holding or parent company. So another name of holding company is parent company. I hope you have understood what is a holding company and what is a subsidiary company. So you just have to remember that if a company owns 50% or more stake or ownership in the other company, the former one is known as the holding or parent company and the latter is known as subsidiary company. And जो section 287 का subsection 2 है, it says the holding company have control over more than 1/2 of the voting power. So देखिए होल्डिंग कंपनी के पास सब्सिडरी कंपनी की आधी से ज्यादा वोटिंग पावर होती है. सो तब हम कहेंगे कि वो अगर ऐसा है तो जिस कंपनी की आधे से ज्यादा वोटिंग पावर एक दूसरी कंपनी के पास है उसको होल्डिंग एंड इसको सब्सिडरी कहेंगे. एंड देखिए हमने मिनिमम 50% बोला है. सो सपोज व्हाट इफ अ कंपनी होल्ड्स 100% ऑफ द स्टॉक, 100% ओनरशिप अगर है, सो उसको होली ओन्ड सब्सिडरी कहेंगे. सो अगर किसी सब्सिडरी का 100% शेयर होल्डिंग कंपनी के पास है, ऐसे सब्सिडरी को होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी कहा जाएगा. 9th जो हमारा कैटेगरी है वो है प्रोड्यूसर कंपनी का. सो देखिए अमेंडमेंट करके जो पार्ट 9A है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर डाला गया था और सेक्शन 581A to 581ZT ये सेक्शंस इंक्लूड किए गए थे. चलिए प्रोड्यूसर कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है विच इज रजिस्टर्ड एज अ प्रोड्यूसर कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013. सो प्रोड्यूसर कंपनी जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा ही रेगुलेटेड है, यहीं पे उनका इनकॉर्पोरेशन और रजिस्टर उनको कराना पड़ता है. एंड क्या होती है प्रोड्यूसर कंपनी अगर हम कहें तो जो भी कंपनीज ये नीचे दी गई एक्टिविटीज को परफॉर्म करती हैं, ये A2 जो आगे भी हमने कैटेगरीज लिखी हैं, देखते हैं फटाफट से क्या है जो टाइप्स ऑफ बिजनेस जो करना होता है टू बी कॉल्ड एज अ प्रोड्यूसर कंपनी. सो इफ एनी कंपनी इज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, processing, procurement, grading, pooling, handling, marketing, selling, export of primary produce. Now this is very very important here. Primary produce. Now what is primary produce? You all know, you have read like school से ही हम पढ़ते आ रहे. Primary produce means जो primary sector है वहाँ से जैसे crops हो गया and cotton हो गया and dairy products, these are all covered under primary produce. So इनकी production, harvesting या processing में जो and several other things इनमें जो companies involved होती हैं इन सबको हम producer company कहते हैं. दूसरी अगर हम कैटेगरी देखें वो क्या, दूसरा जो टाइप्स ऑफ कंपनीज जो इसके अंदर आती हैं वो कौन सी हैं, जो टेक्निकल सर्विसेज रेंडर करती हैं. सो द कंपनीज रेंडरिंग टेक्निकल सर्विसेज या कंसल्टेंसी सर्विसेज या ट्रेनिंग और एजुकेशन एंड डेवलपमेंट and all other activities for the promotion of its members. ठीक है. सो कोई भी कंसल्टेंसी सर्विस या टेक्निकल सर्विसेज जो ऐसी कंपनीज को प्रोवाइड करती हैं वो भी प्रोड्यूसर कंपनी के अंदर आएंगी. जनरेशन, ट्रांसमिशन and distribution of power, revitalization of land and water resources, their use, conservation and communication relatable to primary produce. So इससे related जो companies है वो सारी भी producer company की category में आएंगी. And lastly, promoting mutual assistance, welfare activities, financial services and इंश्योरेंस ऑफ प्रोड्यूसर्स और देयर प्राइमरी प्रोड्यूस. तो ये सारी एक्टिविटीज जो भी कंपनीज परफॉर्म करती हैं वो प्रोड्यूसर कंपनी की कैटेगरी में आएंगी. Now there are certain silent conditions. Silent conditions as in they're not per se mentioned in the act, but they are necessary for a company to be called as a producer company. So the first that we have is
only persons engaged in activity connected with or related with primary produce, यानी जो primary producers हैं या जो इनसे जुड़े हुए हैं, इनसे connected हैं, वो लोग ही इसकी ownership में हिस्सा ले सकते हैं. Only they can participate. Next is members have necessarily to be primary producers. तो यानी जो farmers हो गए या अगर किसी का डेयरी प्रोडक्ट्स का बिजनेस है या जो जनरेशन ऑफ एंड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी कौन सी जो इन फार्मर्स को प्रोवाइड की जाती है इससे रिलेटेड अगर कोई है, तो दीज आर ऑल प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एंड दे ओनली दे कैन बिकम अ मेंबर ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी. एंड दिस कंपनीज आर विद लिमिटेड लायबिलिटी. इनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है, लिमिटेड टू द extent of unpaid amount on the shares. And next requirement is that the name of the company shall end with producer company limited. So इन्हें अपने नाम के आगे producer company limited लगाना पड़ेगा. और registration पर जो producer company है, it shall become as if it is a private limited company. So for the purpose of application of law and administration of the company. ये देखिए क्या कह रहा है कि registration के वक्त जो procedure है प्रोड्यूसर कंपनी का, वो सेम जो एक प्राइवेट कंपनी का होता है वही फॉलो किया जाएगा. एंड हाउएवर इट शैल कंप्लाई विद द स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ पार्ट 9A. सो देखिए पार्ट 9A जो अमेंडमेंट करके बाद में कंपनीज एक्ट में डाला गया था, जिसके तहत 581A से लेके 581Z तक जितने सेक्शंस है वो सारे जो भी कंडीशंस है प्रोड्यूसर कंपनी को उनको फॉलो करना है, कंप्लाई करना है प्रोविजंस के साथ. एंड द लिमिट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज नॉट एप्लीकेबल टू these companies, यानी there is no maximum limit of members in case of producer companies. चलिए, next category is one person company. देखिए this is a very recent and emerging category. ये हमारे पुराने 1956 वाले एक्ट में नहीं था. So this is like emerging trend that we have seen where law has allowed one person to constitute a company. देखिए अभी तक हमने ये देखा है कि मिनिमम 2 मेंबर चाहिए प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए, मिनिमम 7 मेंबर चाहिए पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए, बट देयर इज वन पर्सन कंपनी जिसको बनाने के लिए सिर्फ एक ही मेंबर की रिक्वायरमेंट है. So let's find out what is a one person company. सेक्शन 262 जो है कंपनीज एक्ट का, वो डिफाइन करता है वन पर्सन कंपनी को. सेक्शन 262. So it says a company which is only one person as a member. Simple and precise कि एक ऐसी कंपनी जिसमें एक ही पर्सन मेंबर है उसको वन पर्सन कंपनी कहेंगे. अगर हम बात करें कि वन पर्सन कंपनी पब्लिक कंपनी होगी या प्राइवेट कंपनी होगी, सो सेक्शन 268 इस बात को क्लियर किए देता है कि इट विल बी अ प्राइवेट कंपनी. ये कंपनीज एक्ट 2013 के तहत बहुत सारे रूल्स हैं जो अलग से पास किए गए हैं. सो ऐसे कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 का जो रूल 3 है वो कहता है कि सिर्फ एक नेचुरल पर्सन जो कि एक इंडियन सिटीजन है और उसका रेजिडेंस भी इंडिया में है, ओनली ही और शी इज एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट वन पर्सन कंपनी. और एक और रिक्वायरमेंट है, वन पर्सन कंपनी के केस में जो पर्सन कंपनी को शुरू कर रहा है, इनकॉर्पोरेट कर रहा है, उसको एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा. So this is a very special thing. One person company के केस में special requirement है, unique distinctive feature of one person company. So let's find out what are other important features of one person company. सबसे पहले जैसे कि हम देख चुके हैं कि प्राइवेट कंपनी होगी, सो प्राइवेट कंपनीज की तरह ही काम करेगी. so सारी प्राइवेट कंपनी वाली रिक्वायरमेंट्स जो है, प्रोसीजर जो है वो उस पर लागू होगा. सिंगल मेंबर है, एक ही पर्सन है जो मेंबर होगा, वही शेयर होल्डर है, अनलाइक अदर प्राइवेट कंपनीज. एंड हमने देखा कि एक डिस्टिंक्टिव और यूनिक फीचर वन पर्सन कंपनी का ये है कि उन्हें नॉमिनी अपॉइंट करना है. तो वन पर्सन कंपनी के केस में जो पर्सन है उसको एक नॉमिनी अपॉइंट करना है. परपेचुअल सक्सेशन नहीं होगा ऐसे कंपनी के केस में. देखिए ऑब्वियस सी बात है कि एक ही पर्सन है जो कंपनी को रन कर रहा है. सो इफ दैट पर्सन डाइज, द कंपनी will also like the company will die, the business of the company will end. So देखिए वैसे कंपनी के केस में परपेचुअल सक्सेशन होता है, because as we say members may come, members may go, but the company goes on forever. But one person company के केस में परपेचुअल सक्सेशन नहीं होगा, because एक सिंगल ही मेंबर है जो कंपनी को चला रहा है, and if anything happens to him, the company dies. चलिए नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 1 डायरेक्टर यहाँ पे जरूरी है एंड मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं वन पर्सन कंपनी के केस में. मिनिमम पेड अप कैपिटल जैसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, जैसे हमने पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के केस में देखा. और जो स्पेशल प्रिविलेजेस और एग्जेम्पशंस कंपनीज एक्ट के अंदर बाकी कंपनीज को दी गई हैं वो इनको नहीं मिली है.
चलिए नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है स्टैट्यूटरी कंपनी की। देखिए स्टैट्यूटरी कंपनी को स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस या पब्लिक कॉर्पोरेशंस भी कहते हैं, एंड दीज आर एक्चुअली पब्लिक बॉडीज व्हिच आर एस्टैब्लिश्ड एंड ऑपरेटेड बाय अ स्टैट्यूट। तो यानी कोई भी ऐसी कंपनी जिसको एक सेपरेट एक्ट बना के पार्लियामेंट ने एक अलग से एक्ट बना के उस कंपनी को फॉर्म किया है, ऑल दोस कंपनीज आर नोन एज स्टैट्यूटरी कंपनी। फॉर एग्जांपल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LIC, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ONGC, ये सारी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है क्योंकि इनका एक सेपरेट एक्ट या स्टैट्यूट पार्लियामेंट ने बनाए हुए हैं। सिमिलरली अगर हम ICSI देखें, इट इज ऑल्सो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बिकॉज पार्लियामेंट ने एक अलग से स्टैट्यूट बना के ICSI को बनाया है। ICAI, so all these are statutory corporations. Next, so next category is investment company. देखिए इन्वेस्टमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका मेन बिजनेस क्या है, शेयर्स और सिक्योरिटीज में डील करना। सो द मेन बिजनेस इज एक्वायरिंग, होल्डिंग एंड डीलिंग इन शेयर्स। सो इन्वेस्टमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है whose main business is acquiring, holding and dealing in shares and securities. देखिए इन्वेस्टमेंट वर्ड आया, so there is no doubt it suggests कि कंपनी का जो मेन काम होगा वो क्या होगा, शेयर्स एक्वायर करना, शेयर्स होल्ड करना, और उन शेयर्स को होल्ड करके जो इनकम आ रही है शेयर से या डिबेंचर से, अगर डिवेंचर है तो इंटरेस्ट आएगा, शेयर है तो डिविडेंड आएगा। सो इस तरीके से कंपनी अपना बिजनेस रन कर रही है, इनकम कमा रही है। बट ये जरूरी नहीं है क्योंकि बहुत सी इन्वेस्टमेंट कंपनीज एक्चुअल प्रैक्टिस में हाउ डू दे अर्न देयर इनकम, नॉट ओनली बाय एक्वायरिंग और होल्डिंग शेयर्स एंड जस्ट अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड, बट दे ऑल्सो व्हाट दे डू इज दे बाय विद अ व्यू टू सेल लेटर एट अ हायर प्राइसेस, कि आज खरीद लिया ठीक है और बाद में जब प्राइस बढ़ेगा तब उस शेयर को सेल कर देंगे। So this is also what they do and this is how this is also another way how they earn money. So example है इन्वेस्टमेंट कंपनी का इंडिया में बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. I hope you have understood what is an investment company. Now let's move on to next category, that is finance company. देखिए फाइनेंस कंपनी को NBFCs भी कहते हैं यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. सो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इनका मेन काम क्या होता है, लोन्स देना इंडिविजुअल्स को और बिजनेसेस को. सो दे आर इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस. सो अनलाइक अ बैंक, अ फाइनेंस कंपनी डज नॉट रिसीव कैश डिपॉजिट. देखिए बैंक और फाइनेंस कंपनी में क्या फर्क है, बैंक भी लोन प्रोवाइड करता है बट बैंक डिपॉजिट्स भी लेता है, जबकि फाइनेंस कंपनीज आर नॉट अलाउड टू टेक डिपॉजिट्स. So अपने क्लाइंट से डिपॉजिट नहीं लेते हैं एंड दे ऑल्सो डू नॉट प्रोवाइड अदर सर्विसेज दैट बैंक्स प्रोवाइड, फॉर एग्जांपल चेकिंग ऑफ अकाउंट्स. सो क्वेश्चन इज हाउ डू फाइनेंस कंपनीज अर्न देयर प्रॉफिट. दे अर्न देयर प्रॉफिट फ्रॉम द इंटरेस्ट, यानी जो लोन्स ये प्रोवाइड करते हैं उस पे ये जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं लोगों से, इट इज अ मेन सोर्स ऑफ देयर इनकम because the interest that they charge is normally higher than the interest charged by the banks. So बहुत सी फाइनेंस कंपनीज जो हैं ऐसे क्लाइंट्स को लोन प्रोवाइड करती हैं जिनको जनरली बैंक नहीं देगा लोन बिकॉज ऑफ देयर पुअर क्रेडिट हिस्ट्री. फॉर एग्जांपल इंडिया में जो फाइनेंस कंपनीज है वो मुथूट फाइनेंस है, IDFC है, बजाज फाइनेंस लिमिटेड है. So this was the last category of company. I hope you have understood all the 14 categories of different companies that exist and you have understood the difference between them. And if you do like the video, give it a thumbs up and just let me know what next topic would you like me to make a video on. आप क्या समझना चाहेंगे next company law के अंदर. So thank you so much for watching the video. Have a great day.